فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات محتاج تعارف نہیں، دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قدم قدم پر امتحان لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، رب نے آگ کو سرد کر دیا، کم و بیش 40 دن تک آگ میں رہے۔ آگ سے جب باہر نکلے، ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تھے، آگ کے انگاروں سے کھیل رہے تھے، اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ آگ سرد ہو گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام آگ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، وہ آگ کے انگارے پھول بن جایا کرتے تھے۔ نمرود لعین کی لڑکی یہ منظر دیکھ رہی تھی چھت کے اوپر کھڑی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، آگ جلا نہیں رہی ہے بلکہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہے۔ نمرود لعین کی لڑکی جس کا نام رغفہ تھا، اس لڑکی نے کہا اے اللہ کے بندے میں بھی آگ میں آؤں گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عورت سن، اگر تو آگ میں آئے گی تو آگ تیرے جسم کو جلا دے گی، اگر تو آگ میں کودنا چاہتی ہے تو پہلے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ نمرود لعین کی لڑکی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہے، آگ نے اسے بھی نہیں جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، ملک شام گئے، وہاں آپ نے نکاح کیا، 80 سال کی عمر شریف ہو گئی، کوئی اولاد نہیں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت نے ایک نیک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد حضرت ہاجرہ کے شکم اطہر سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب دیکھا تو رشک پیدا ہو گیا، کاش پروردگار عالم مجھے بھی کوئی اولاد عطا کر دیتا۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کشمکش میں مبتلا، کیا کیا جائے؟ پھر حضرت سارہ نے کہا اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار میری بیوی سارہ کیا کہہ رہی ہے، میں اپنے لخت جگر کو جنگل میں چھوڑ کے آؤں، میں ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کے آؤں۔ رب نے ارشاد فرمایا ابراہیم سنو، جو سارہ کہہ رہی ہیں وہی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو تیاری کا حکم دیا۔ حضرت ہاجرہ نے تھوڑی کھجوریں رکھ لی، تھوڑا سا پانی رکھ لیا، رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیوی اور بچے کو جنگل کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچتے ہیں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جب جنگل میں چھوڑ کے چلنے لگتے ہیں حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑتی ہیں، دوڑ کے کہتے ہیں ابراہیم تم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑنا تو چھوڑ دیجئے لیکن اپنے لخت جگر اسماعیل کو تو ساتھ میں لے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کیا بات بولتے کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا تھا اے میرے شوہر کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہمیں جنگل میں چھوڑ دو، اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے ہاجرہ اللہ نے یہی مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا اے ابراہیم اگر اللہ نے حکم دیا ہے بے شک آپ یہاں سے چلے جائیے، جس رب نے مجھے یہاں ٹھہرانے کے لیے تمہیں حکم دیا ہے وہ رب مجھے ضائع نہیں فرمائے گا، اپنی بارگاہ میں مجھے قبول فرما لے گا۔ اے ابراہیم سن لو، جو پروردگار عالم مجھے 80 سال کی عمر میں مجھے بیٹا عطا کر سکتا ہے تو مجھے وہ اس جنگل میں کھانا بھی دے سکتا ہے، پینے کے لیے پانی بھی عطا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، چلے گئے، تھوڑا پانی ختم ہو گیا، تھوڑی کھجوریں ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ کی چھاتیوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ہونٹ خشک ہو گئے۔
प्यास की शिद्दत में एड़ियां जमीन पर मारने लगते हैं। जब मां ने देखा तो मां की ममता तड़प गई, मां से देखा ना गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम छोड़ के चले गए थे। हजरत हाजरा ने सोचा अब किया जाए। पानी की तलाश में निकल पड़ती हैं, कई जगह पे तलाश करती है लेकिन पानी नजर नहीं आता है। दौड़ती हुई सफा पहाड़ी पर जाती है, अतराफो जवानी में नजर डालती है, चारों तरफ देखती है कि पानी नजर नहीं आता है। दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी पर जाती है, पानी देखती नजर नहीं आता है। ये वो पहाड़ियां जिन पहाड़ियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफा पहाड़ी से मरवा पे जाती, मरवा से सफा पे आती हैं, 7 चक्कर लगाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत हाजरा के दौड़ना इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया, कयामत तक हाजियों पर वाजिब कर दिया कि वो भी सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाएं। 7 चक्कर हो गए, कहीं पानी नजर नहीं आया। अचानक क्या देखती हैं, जहां पर बेटे को छोड़ के आई है वहां पर परिंदे मंडरा रहे, वहां पर परिंदे मंडरा रहे हैं। जब मां ने परिंदों को मंडराते हुए देखा तो हजरत हाजरा दौड़ती हुई गई, कहीं ऐसा ना हो कोई परिंदा मेरे बेटे इस्माइल को अजियत पहुंचा दे, कोई परिंदा मेरे बेटे इस्माइल को तकलीफ पहुंचा दे। दौड़ती हुई गई, जाने के बाद क्या देखते हैं, जहां पर इस्माइल ज़बीहुल्लाह की अनिया थी वहां से पानी का चश्मा निकल पड़ा है। सुभान अल्लाह, पानी का चश्मा निकल पड़ा जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी पिया, अपने लख्त जिगर को पानी पिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस पानी के इर्द गिर्द मिडेर बनाती, कहती अलमाओ ज़मज़म, अलमाओ ज़मज़म। अय पानी ठहर ठहर, अय पानी ठहर ठहर। पानी रुक जाता है, पानी रुक गया। हजरत हाजरा हैं, आपके बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं। उधर से काफिले वाले का गुजर हुआ, काफिले वालों ने देखा कि एक औरत है, उसकी गोद में बच्चा है। काफिले वाले करीब गए, जाने के बाद पूछना चाहते तुम कौन हो? गैब से आवाज आती, इनसे ना पूछो, ये जो औरत है ये पैगंबर की बीवी है, इसकी गोद में जो बच्चा है पैगंबर का बेटा है। अब वो काफिले वाले पानी पीते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हजरत हाजरा से इजाजत तलब करते हैं, वहीं पर ठहर जाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब छोड़ा था दुआ मांगी थे, परवरदिगार मैंने अपनी औलाद को जंगल में छोड़ दिया है, ऐ मौला तू इन्हें नमाजी रखना, इन्हें फलों का रिज़्क अता फरमा देना, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर देना, फेर देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कदम कदम पर आजमाइशें ली। अल्लाह की रजा के लिए अपने बीबी और बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। सारे इम्तहानों के बाद सबसे अजीम इम्तहान आ जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात सो रहे हैं, ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। सुबह नमूदार हुई, 100 ऊंट रब की बारगाह में कुर्बान करते हैं। फिर दूसरी रात सोते हैं, फिर वही ख्वाब, इब्राहिम सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान करो। 200 ऊंटों की कुर्बानी पेश कर दी। तीसरी रात सोए, फिर वही ख्वाब। फिर जब तीसरा दिन आता है तो आप दिल में ख्याल करते हैं, ऐ इब्राहिम तेरा रब तुझसे तेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी कबूल कर रहा है, इस्माइल की कुर्बानी मांग रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के पास गए, जाने के बाद कहते हाजरा मैं और मेरा बेटा दावत पे जाना है, तुम मेरे बेटे इस्माइल को तैयार कर दो नहला धुला के। हजरत हाजरा ने तैयार किया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने छुरी और रस्सी ली, लेने के बाद हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को सवारी पर बिठा लिया। लेके जब चलने लगे तो शैतान के पेट में मरोड़ होना शुरू। शैतान दौड़ता हुआ हजरत हाजरा के पास गया, जाने के बाद कहता हाजरा क्या तुम्हें मालूम है इब्राहिम अपने बेटे को कहां लेके गए? हजरत हाजरा ने कहा दावत में। कहा नहीं, उन्होंने झूठ बोला है, वो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कहीं ऐसा भी होता है एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर दे? शैतान ने कहा नहीं, उन्हें ऐसा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो इसीलिए लेके गए हैं
हजरत हाजरा ने कहा सुन ले, अगर रब मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी कबूल कर ले तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर परवरदिगार आलम मुझे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी अता कर दे तो मैं खुद रब की बारगाह में अपने हाथों से इस्माइल जैसे बेटों को कुर्बान करती चली जाऊंगी। शैतान ने माथा पीटा, भागा, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। जाने के बाद कहता, इस्माइल क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाप तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं? कहा दावत में? कहा नहीं, वो तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। कहा ऐसा हो सकता? कहा हाँ, उन्हें अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा अगर अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है तो मुझे इस रास्ते से रोकने वाला तू जरूर शैतान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ा, शैतान भाग गया। आपने कहा कि अगर रब मेरी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ले मैं तो यही कहूंगा, क्या है परवरदिगार, एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सब वहारा करूं मैं। वहां से भागा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया। जाने के बाद कहता, इब्राहिम महज ख्वाब देख करके तुम अपने बेटे को कुर्बान गाह में लेकर के जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियों को लिया, शैतान को मारते हैं। शैतान वहां से माथा पीट कर भागता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान गाह के करीब लेके गए। ले जाने के बाद कहते, बेटा मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, बता तेरी क्या मर्जी है, बता तेरी क्या राय है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, हजरत इस्माइल ने कहा था, अब्बू जान आप बेशक कीजिए जो करने के लिए आपको रब ने हुक्म दिया है, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। कुरान कहता है जब बाप कुर्बान करने के लिए, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया। लिटाने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पैरों को बांधते हैं, हाथों को रस्सी से बांध देते हैं। बांधने के बाद छुरी को लिया, आंखों पे पट्टी कसते हैं, अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी रख देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, तारीख आलम में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। एक मुकद्दस बाप अपने बेटे के गले पे छुरी रख करके चला रहा है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गले पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी गला काट नहीं रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को पत्थर पे मारा, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा था, ऐ छुरी ये बता, मेरे बेटे का गला तो रेशम से भी ज्यादा नाजुक है, तूने पत्थर जैसी सख्त चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, मेरे बेटे इस्माइल का गला क्यों नहीं काट रही है? तो उस वक्त छुरी ने कहा था, ऐ इब्राहिम सुनो, तुम कह रहे हो काट, लेकिन रब फरमा रहा है मत काट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी को लिया, आंखों पर पट्टी बांधते हैं, अपने बेटे के गले पे छुरी चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, जिब्रील ये मेरा खलील उस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक कुर्बानी नहीं दे देगा। ऐ जिब्रील जाओ, तुम जन्नत जाओ, जन्नत से जन्नती दुम्बा ले लो, इस्माइल को हटा देना, उनकी जगह पे जन्नती दुम्बा रख देना। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत गए, जन्नती दुम्बा लिया। लेने के बाद आते हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को हटा दिया, उनकी जगह पे जन्नती दुम्बा रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे, दुम्बा ज़बा हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आंखों से पट्टी को हटाया तो क्या देखते हैं कि सामने दुम्बा ज़बा पड़ा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार ये क्या मामला है, मैंने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई थी लेकिन दुम्बा ज़िबा हो गया। रब ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील सुनो, जाओ, मुझे तुम्हारी ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई है कि मैंने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है और कयामत तक उम्मत मोहम्मदिया पर वाजिब कर दिया है कि वो भी जो साहिब इस्तिताअत है हर साल तुम्हारी सुन्नत पर अमल जरूर करेंगे। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो साहिब इस्तिताअत होकर के भी कुर्बानी ना करे उसे चाहिए वो मेरी ईदगाह के करीब ना आए। तो अगर अल्लाह ने आपको मालो ज़र से नवाजा है तो हर साल इस कुर्बानी पर अमल जरूर करे, हर साल कुर्बानी जरूर किया करे, इसलिए कि अगर अल्लाह के नाम पर जो चीज कुर्बान होती है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है। न जाने बकरीद में कितने बकरे अल्लाह के नाम पर ज़बा हो जाते लेकिन कम नहीं पड़ते हैं, क्यों? वो अल्लाह के नाम पर कुर्बान होते हैं। जो चीज अल्लाह के नाम पर कुर्बान की जाती है वो चीज घटती नहीं है, अल्लाह ताला उस चीज को दिन दूना चौगुनी रात तरक्की अता फरमाता रहता है।